MGS Defense Academy. So, all those people who are planning to appear for the exams in November for CDSC, or maybe the ones who are from right now planning for CDSC, why? Because they had given their NDA and somehow or the other they were not able to qualify and this was their last attempt. In that cases, you have arrived at the right place. We at MGS are the ones who prepare you for all kinds of defense forces examination. So, without further ado, let's start and see what exactly is the process like. Now, CDSC, as we all know, the Combined Defense Services Examination is held twice a year by UPSC, the same as NDA, but then there are certain differences. And the main thing, what exactly are you supposed to do for your English? Now, English, as we all know, is a big, that hashtag, English बहुत कम आती है, grammar बहुत कम आती है. So there are big question marks about the language, how to go about it, how to manage about it. Here we will see that what exactly is asked, how it is asked, because obviously you do not have questions that come directly. We'll also see the comparison between the difference in an NDA paper and a CDS one, and the pattern of questions from the past year cases that have been coming regularly and religiously. So, the first thing that we need to remember for your English is that there is something called as grammar and a part called as vocabulary. Your question paper comprising of 120 questions is divided into two parts. Roughly, it isn't that you have a 60-60 segment, it's roughly divided into two segments, which is your grammar as well as your vocabulary. Remember, the paper simply checks you upon how good is your knowledge and working capacity of English language. It is not checking you on your intelligence quotient scale. Remember, English is just another language, a language which is preferred by all the examinations held in India. And since it's a language of communication, you need to remember it. Now, before I continue, there might be some students out over there who might have a little difficulty in understanding me. Let me know in the comment section. Comment section में जाइए और मुझे बताइएगा कि आपके लिए टोटली इंग्लिश में क्लासेस ज़्यादा कंफर्टेबल हैं या आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं अगर मैं हिंदी एंड इंग्लिश, दैट मीन्स थोड़ा सा मिक्स होके बाइलिंगुअल में आपसे बात करती रहूं. वाई? बिकॉज देखो, मोड ऑफ कम्युनिकेशन अल्टीमेटली एज आई सेड कि इंग्लिश इज़ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन. ये एक लैंग्वेज है, इससे इंटेलिजेंस नहीं, इससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल चेक होती है. तो अगर हम कुछ बता रहे हैं और सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है तो देयर इज़ नो पॉइंट इन टॉकिंग. इट्स अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके लिए भी. तो जितने भी लोग ये वीडियो इस वक्त देख रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर टू गो इन द कमेंट सेक्शन. कमेंट सेक्शन पे जाइए और वहाँ पे सिंपली ये कमेंट लिखिए कि आपको वीडियोस, आगे के लिए वीडियोस किस लैंग्वेज में प्रेफर्ड होंगे, प्योरली इंग्लिश, हिंदी. अब अगेन लेकिन वही प्रॉब्लम कि देखो हिंदी में इंग्लिश नहीं पढ़ाई जा पाएगी, तो इट विल बी समवेयर अराउंड इंग्लिश. दैट मीन्स अ बायलिंगुअल communication skill or a bilingual way of talking for the teacher. Clear everybody? Secondly, there must be many people who are new on the channel. Make sure to, apart from commenting, try and subscribe the channel. It will be good for you also. Why? Because at the end of the day, there will be many videos which you can check out in future for not just English, but for your maths and other subjects as well. Because after all, अगर आप सीरियस हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, तो आपसे ज़्यादा सीरियस हम हैं. ठीक, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सब्सक्राइब करें. दस बेल आइकन आउट ओवर देयर, उसे प्रेस करके रखें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है, विच विल बी फेयरली रेगुलर, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को आराम से देख सकें, डाउनलोड कर सकें और आपकी पढ़ाई आराम से चले. रिमेंबर, यू जस्ट हैव रफली 50 डेज. 50 डेज बाकी हैं. नवंबर में आपका पेपर है,
तो आपको अपनी प्रिपरेशन थोड़ी सी स्पीड अप करनी पड़ेगी। हम लोग बहुत स्पीड में लेके चलेंगे ताकि आपका कोर्स टाइमली ख़त्म हो और आप रिवीजन भी कंप्लीट कर सको। तो इंग्लिश में एज आई वाज टॉकिंग, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बाइलिंगुअल यूज़ करेंगे ताकि वो बच्चे भी समझ सकें जिनके लिए प्योर इंग्लिश में समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो भाई आपके पास ग्रामर आता है और वोकैब्युलरी आती है। ग्रामर में क्या क्या पूछा जा रहा है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो वही नाउन, प्रोनाउन, टेंसेस एटसेट्रा, वॉइस एंड नरेशन से रिलेटेड। कभी कभी डायरेक्ट कोई क्वेश्चन हो सकता है और कभी कभी इनडायरेक्टली। तो आपको इतनी चीज़ें आनी ही आनी चाहिए। आपको वोकैब्युलरी आना चाहिए क्योंकि आपका सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजेस, ईडियम्स ये सब पूछा ही पूछा जाएगा, जैसे कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। स्पेलिंग्स होंगे, पैसेज होगा। अब इन दोनों के बीच में जो चीज़ें आती हैं, स्पेलिंग इज समथिंग विच इज़ नॉट ग्रामर, विच इज़ नॉट वोकैब्युलरी, इट इज़ समथिंग जो हर भाषा का होता है। जब कोई भाषा आप लिखते हो तो उसमें जो वर्ड है उसकी स्पेलिंग करेक्ट है कि नहीं। इंग्लिश तो वैसे भी बहुत कन्फ्यूजन से भरी पड़ी है। पैसेज होगा तो 2 से 3 पैसेज हो सकते हैं, जिससे अगेन आपकी कैपेसिटी चेक की जाती है कि आप भाषा ठीक से समझ पा रहे हो, क्योंकि तभी तो हम आंसर कर पाएंगे क्वेश्चन का। क्लोज टेस्ट जो कि और कुछ नहीं होता, वो फिल इन द ब्लैंक्स होता है पैसेज फॉर्म में। जंबल सीक्वेंस जो एक सेंटेंस को ऊपर नीचे करके लिखा जाए या कुछ वर्ड्स को ऊपर नीचे करके लिखा जाए और आपको उसको सही सीक्वेंस और ऑर्गेनाइज्ड वे में सेट करना होता है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इन केस कहीं भी आपको कोई चीज़ में क्लैरिटी नहीं मिलती है या आपको लगता है देयर इज समथिंग विच इज़ मिसिंग आउट, मेक श्योर टू गो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो। वहाँ आप जो भी कॉमेंट लिखेंगे आई विल बी रीडिंग इट एंड वी विल बी रेक्टिफाइंग। हम उस मिस्टेक को करेक्ट करेंगे या जो आप एडिशन बोलेंगे वो चीज़ आपको एडेड मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ फॉर श्योर। नाउ रफली स्पीकिंग, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव दिस आइडिया कि मैम एनडीए में और सीडीएस में किस तरह से डिफरेंस होता है। वो बच्चे जिन्होंने एनडीए का पेपर ऑलरेडी अटेम्प्ट किया है, दे चुके हैं, उनको बहुत अच्छे से आइडिया है कि एनडीए एंड सीडीएस में डिफरेंस नहीं, लेकिन उन्हें एनडीए का पता है। तो आउट ओवर हियर इफ़ यू सी, सबसे बड़ी चीज़ एनडीए में 50 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल से 50 क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें तो सीडीएस में पूरा पेपर, जैसे एनडीए में मैथ्स का पेपर बिल्कुल अलग होता है और इंग्लिश गैट के ही पेपर में आपको आता है। 50 क्वेश्चंस होते हैं और वहाँ पे गैट का ही एक पार्ट होता है, एनडीए का ए पार्ट, ठीक, सिर्फ 50। यहाँ दुगने से ज़्यादा आ रहा है, 120 क्वेश्चंस। दुगना तो सिर्फ 100 हुआ, तो 120 क्वेश्चंस आर कमिंग इन सीडीएस। एनडीए में जैसे इसी टाइम की बात करें, अगर हम 2020 की, पैसेज दिया ही नहीं उन्होंने, ख़त्म। यहाँ तो पैसेज आएगा ही आएगा। स्पॉटिंग एरर्स हर साल आती हैं, एनडीए में भी, सीडीएस में भी आएंगी। ईडियम्स एंड फ्रेजेस यहाँ भी आते हैं, लेकिन 2020 में एक भी नहीं पूछा उन्होंने। यहाँ एक सेगमेंट अलग है, पूछा ही पूछा जाएगा। सिनोनिम एंड एंटोनिम हर साल पूछा जाता है, हर एग्जाम में, इंडिया का नहीं, कहीं का भी एग्जाम हो, यू नीड टू हैव नॉलेज ऑफ वोकैब्युलरी, तो ये तो पूछेंगे ही। फिर आ जाता है कि फिल इन द ब्लैंक्स, वो भी आता है। इस बार जैसे फिल इन द ब्लैंक्स अगर पूछा गया था तो एनडीए में पूरा प्रेपोजिशनल केस पूछ लिया गया। अब इस टाइम कैसा पूछा जाएगा, नोबडी नोज ऑफ सीडीएस और इवन ऑफ एनडीए, बट फ्रेजल्स आते हैं। देन वी हैव जंबल सीक्वेंस। एनडीए सीडीएस दोनों में इक्वल केसेस हैं। यहाँ पे भी जंबल वर्ड्स, जंबल सेंटेंसेस होते हैं सीडीएस में, एनडीए में भी जंबल वर्ड्स, जंबल सेंटेंस होते हैं। अब की सिर्फ जंबल वर्ड आया था, यू आर ऑन द सेफ जोन। सीडीएस में ऐसा नहीं होगा, इसमें एक सेगमेंट जंबल वर्ड, एक सेगमेंट जंबल सेंटेंस चलेगा। देन वी हैव, एंड पीपल हु हैव अ लिटिल डाउट अबाउट कि मैम जंबल्ड वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, तो स्टे पुट, टिके रहिए, वीडियो में आपको आगे सारा कुछ इन्फॉर्मेशन कंप्लीट मिलेगा, डिटेल में मिलेगा। क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट एनडीए क्लोज टेस्ट कभी कभार देता है, हर 2 साल में एक बार दे दिया, अब की नहीं दिया था, पिछले साल नहीं दिया था, इसमें आएगा ही। एनडीए स्पेलिंग पूछता है, कभी नहीं पूछी, आज तक नहीं पूछी, ये पूछेगा। एनडीए ने कभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन पूछा? नहीं, ये पूछेगा। प्लस यहाँ पे ऑलरेडी एक और जो चीज़ एडेड थी, जो अभी हम लोगों ने देखी थी, कि हो सकता है
वो वॉइस एंड नरेशन के भी क्वेश्चंस अलग से पूछ ले। सो CDS बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़न्ट जस्ट ये कि ठीक है ये तो ग्रेजुएशन का है और वो तो 12th लेवल का है। द पॉइंट इज इन दैट अल्टीमेटली CDS का इंग्लिश का पेपर इज़ ऑन अ हायर लेवल एज कम्पेयर टू NDA। सो फर्स्ट थिंग, जो बच्चे ने NDA दिया है और अब वो CDS के लिए प्रिपेयर कर रहा है और ये सोच रहा है कि वही किताब, वही चीज़ें, वही नोट्स, काम चल जाएगा यहाँ से, तो बच्चे ऐसा नहीं है। यू विल हैव टू लर्न अ होल लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। एक सिंपल सी चीज़ कि आप अगर स्पेलिंग्स की ही बात करो तो आपको सारा कुछ क्या आ रहा है। अगर हम आपसे ये पूछें कि ये 4 स्पेलिंग है, इसमें से कौन सी करेक्ट है, तो एक बार आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। सो दैट इज़ वाई यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि क्या क्या चीज़ें अब हमें एडिड प्रिपेयर करनी है अगर हमने NDA पहले प्रिपेयर कर रखा है। एंड द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जिन्होंने NDA कभी नहीं दिया, उन्होंने डायरेक्टली अब सोचा ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन ईयर्स दैट हमें भी ना देश की सेवा के लिए कुछ करना चाहिए। हु इनकरेज्ड, हु मोटिवेटेड, हु वांट दैट टू सी देमसेल्व्स एट दैट लेवल, और उन्होंने अपना सोचा है, अब सोचा है, प्रिपेयर कर रहे हैं। इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है, वेल एंड गुड, आप सेल्फ स्टडी करिए, कोई इशू नहीं। यू कैन टेक अ बुक फॉर CDS प्रिपरेशन एंड स्टार्ट इट। द वंस हु नीड अ लिटिल गाइडेंस मे कंटिन्यू एंड रिमेंबर, लाइक कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, मैम आपने 2 वीडियो पढ़ाया फिर आप पेड ना कर दो, ऐसा नहीं है। YouTube पे, यहाँ पे MJS डिफेंस एकेडमी, अगर आप प्रीवियस भी देखिए हमारी हिस्ट्री, तो हम लोगों ने NDA का कोर्स टिल द लास्ट डे 6 सितंबर को NDA का पेपर था, 5th तक हमारे टीचर्स पढ़ा रहे थे। इवन टिल 4th आई हैड टेकन अ रिविजन क्लास। सो इट इज़ दैट हम लोग कोई चार्जेस नहीं लगा रहे हैं, फ्री पढ़ा रहे हैं। हाँ, रहा कि ऑनलाइन में कुछ बच्चे रजिस्टर होते हैं, दैट इज़ ऑप्शनल। रिमेंबर इट्स ऑप्शनल, ये आपके ऊपर है कि आप कभी रजिस्टर होते हो कि नहीं होते हो। अदरवाइज दिस कोर्स ऑन YouTube फ्रॉम MJS फॉर CDS aspirants is absolutely totally free. You don't need to pay a single penny. Clear? And yes, we will continue our classes till the very end. We'll complete the entire course. We'll give you your revision. तो हम revision देंगे, course complete कराएंगे और classes रेगुलर मिलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, टीचर्स आपसे इंटरेक्ट करेंगे, Q&A सेशंस भी आपके लिए किए जाएंगे। सो वी आर हियर टू स्टे, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यहीं रहेंगे और आपके एग्ज़ाम के आखिरी दिन तक आपके साथ सपोर्ट पे पढ़ाते हुए खड़े होंगे। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर, बिकॉज ऑब्वियसली पढ़ाई करते रहना है आपको, साथ में चीज़ें समझते रहना है, किस तरह से प्रोसेसेस चलते हैं, पढ़ाई किस तरह से आपको प्लान करनी है। रिमेंबर, हम ये नहीं कह रहे कि आप पढ़िए या वीडियो देखिए, कहाँ वही चीज़, ये टोटली बच्चे की चॉइस होती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं पे कुछ मिस आउट हो रहा है, कुछ चीज़ें जहाँ आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप वीडियोस देख सकते हैं, चीज़ें क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपकी अपनी प्रिपरेशन करेक्ट चल रही है या नहीं। तो दिस इज़ जस्ट फॉर योर गाइडेंस फॉर एनी चाइल्ड who wants to clear this exam, क्योंकि ये एग्ज़ाम हंसी खेल वाला नहीं है। आपका इंग्लिश का सेगमेंट, एटलीस्ट बीइंग योर इंग्लिश टीचर, ठीक, आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश, तो आई नो कि इंग्लिश अच्छे लेवल की आती है, प्रॉपर लेवल की आती है। एक बच्चे को अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए अगर उसे CDS का पेपर क्लियर करना है। सो कंटिन्यूइंग कि अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन पूछा जाता है, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं आपके सामने। कुछ बच्चे जो ICSE के होते हैं, CBSE के होते हैं और बहुत दिन से आपने इंग्लिश पढ़ी भी नहीं है, मान के चलिए आपने अपना ग्रेजुएशन किसी ऐसे सब्जेक्ट से किया है कि वहाँ पे इंग्लिश की कोई ऐसी आपको ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ी, आप PCB के हो, आप PCM के हो, या फिर आपके पास आर्ट्स का या कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट है, आर्ट्स में स्पेशली कि आपके पास साइकोलॉजी है, ज्योग्राफी है, फिजियोलॉजी है, तो आप, बट ऑब्वियसली आपको ये सारा कुछ क्या अच्छे से याद है? अगर नहीं याद है तो यू नीड टू रिवाइज इट, यू नीड टू रिवाइज इट नाउ। 50 दिन बचे हैं, 50 दिन मतलब बहुत कम दिन होते हैं अगर आप बात करिए, ठीक। पीपल स्टार्ट अज्यूमिंग अरे 50 दिन बहुत होता है, नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं होता है। इस जैसे एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल नहीं होता है। यू नीड टू स्टडी नाउ एज एन नाउ।
तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, और इनका यूसेज कैसे होता है, ये आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, इनको हम यूज़ कब कहाँ कैसे कर सकते हैं। क्योंकि सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपसे एक सिंपल सा सेंटेंस, ठीक, हमने देखा, मैंने लिखा है माई नेम इज़ कामायनी, तो आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो ये 1 2 3 4 शब्दों का एक सेंटेंस, छोटा सा सेंटेंस है, मोस्ट कॉमन सेंटेंस है। एक नर्सरी का बच्चा ये बोल लेता है कि किसी ने पूछा व्हाट इज़ योर नेम, माई नेम इज़, मेरा नाम, और जो भी उसका नाम ये है। तो माई नेम इज़ कामायनी में कैन यू आइडेंटिफाई, देखिए ये वीडियो उन बच्चों के लिए है, हम अगेन ये चीज़ स्पेसिफाई कर दें दैट इफ़ यू आर गुड विद इंग्लिश, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ होंगे जिनकी इंग्लिश की जो नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, प्रिपरेशन है, बहुत अच्छी है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप सारे वीडियो देखें, आप मे भी वो वाले देखें जहाँ पे आपको लगता है कुछ वीक है, कि भाई जिस दिन हमने प्रेपोजिशन पढ़ाया आप देख लीजिए, प्रेपोजिशन इज़ कन्फ्यूजिंग। कोई भी बच्चा जो इंग्लिश जानता है वो जानता है प्रेपोजिशंस आर रियली कन्फ्यूजिंग, वन ऑफ द मोस्ट कन्फ्यूजिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी इंग्लिश में थोड़ा कुछ गड़बड़ है, कंटिन्यू वॉचिंग इट बिकॉज इट इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। जब इधर उधर के बहुत से वीडियोस हम लोग देखते रहते हैं, फालतू की चीज़ें देखते रहते हैं, वो स्टैंड अप कॉमेडी से लेके पीपल स्पीकिंग ऑल काइंड्स ऑफ रॉटन थिंग्स एंड वी वॉच, तो कम से कम आप अपने भविष्य के लिए ये ज़रूर देखें। तो अगर हमने कहा माई नेम इज़ कामायनी, तो सॉल्व करने की कोशिश करिए, ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कामायनी वर्ड एक नाउन है, इतना तो सबको पता होगा कि नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग इज़ अ नाउन, तो ये नाउन है, पर बाकी ये 3 शब्द किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन हो पा रहा है दैट मीन्स योर प्रिपरेशन इज़ गुड इनफ, बहुत अच्छी, अगर नहीं तो भी फेयरली गुड इनफ है। बट अगर आप नहीं पकड़ पाए हो तो ये वीडियो आप जैसे ही बच्चे के लिए, आप अगर एक CDS देना चाहते हो या FCAT देना चाहते हो या इससे रिलेटेड आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड एग्जामिनेशन दे रहे हो ग्रेजुएट लेवल का, दिस इज़ द टाइम टू स्टार्ट स्टडिंग। अब समय आ गया है कि आप पढ़ाई स्टार्ट कर लें। आप पढ़ाई कहाँ करें, अगेन सेम थिंग आपके ऊपर है, लेकिन आप पढ़ें, चाहे आप किताब से पढ़ें, इस चैनल पे पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, बट ये क्वेश्चन आपके लिए गेम चेंजर साबित होना चाहिए। ये मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, आप सोचिएगा। देन आई टेल यू द आंसर, ठीक, बने रहिएगा, आपको इसका आंसर वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। अभी सिर्फ क्वेश्चन देखते हैं, खुद को चेक करते हैं कि भाई हम कहाँ स्टैंड कर पा रहे हैं, हमारा प्रोसेस सही चल रहा है प्रिपरेशन का कि नहीं चल रहा है, और अगर हमें प्रिपेयर करना है तो हमें किस लेवल पे आके करना है। अब ये 4 वर्ड हमें मिल रहे हैं, स्पेलिंग का क्वेश्चन है। क्या कोई बता सकता है, आप में से कोई भी, आप चाहो तो सारे क्वेश्चंस के आंसर पेपर पे लिखते जाओ, एंड में कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मैम मैंने इतने करेक्ट किए। आई सी, आई चेक एंड आई बी वेरी हैप्पी। क्रॉस चेक तो खैर आप लोग अभी कर लोगे, ऐसी कोई बात नहीं है, बट एटलीस्ट यू विल गेट टू नो कि वेयर डू यू स्टैंड, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो अकोमोडेट वर्ड है, इसकी 4 स्पेलिंग्स हैं, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, एग्जैक्टली कौन सी करेक्ट है। फिर यहाँ पे एक सिनोनिमस केस लिखा है मैंने, यानी सिनोनिम अकिन वर्ड है, ठीक, ये वर्ड है, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा करेक्ट लग रहा है आपको, ठीक, या कौन सा सही है। उसके बाद आ जाते हैं ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, और यहाँ पे मैंने पूछा है आपसे एंटोनिम, तो ये है जहाँ आपको बताना है एंटोनिम, और ये है जहाँ आपको बताना है सिनोनिम। तो कैन यू टेल द आंसर, कैन यू चेक द करेक्ट आंसर। और हाँ, आंसर करने के लिए गूगल मत करना, डू नॉट पिक अप दैट फोन, मतलब पिक अप द फोन टू वॉच द वीडियो, बट एज आई सेड पेन पेपर लेके बैठो, आंसर उस पर लिखिएगा, ठीक है। डायरेक्टली गूगल करके, डिक्शनरी खोल के, मान के चलिए आपने लिख लिया, आपने कमेंट में भी लिख दिया, मैम को इम्प्रेस कर लो, हाँ भाई मैम देखिए हमें तो सब आता है। द प्रॉब्लम इज़ बच्चे कि जब एग्ज़ाम होगा तो हम क्या करेंगे। तो बी वेरी फेयर टू योर सेल्फ, सच्चाई अपने से, अपने अंदर झांकिए कि मेरे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है यू आर वेल प्रिपेयर्ड,
कीप अप द गुड वर्क। आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर रही है, लेकिन प्रैक्टिस बनाए रखिए, और अगर नहीं आ रहा है ना तो फिर वीडियो तो कंटिन्यू करना बनता है आपका। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप देखें तो एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल अगेंस्ट ऑल मेटल्स, लास्ट में नो एरर। कई बच्चे तो इसी में कहते हैं ना दिमाग घुमा गए होंगे, एनडीए वाले खासतौर, मैम ये किस तरह नो एरर है, क्योंकि वहाँ तो सेंटेंस लिख के आता है। कुछ नहीं है भाई, इट्स सिंपल एज दिस, उन्होंने ये कर दिया है, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल अगेंस्ट ऑल मेटल। सेम प्रोसेस है, उसको सीधा लिखने की जगह स्टेप वाइज लिखा है। दिस इज हाउ यू प्ले साइकोलॉजिकली विद द माइंडसेट ऑफ द चाइल्ड, कि एक बार बच्चा ना, जब हमें ऐसे सेंटेंस मिलता है तो हमारा दिमाग आदी होता है, रोज़ उठता है पढ़ने का, ऐसे मिलता है कि हम ऐसे पढ़ते हैं, मैथ्स तो चल नहीं रहा है, हमारा दिमाग एक सेकंड के लिए फ्लिप कर जाता है। वो कहते हैं ना गुलाटी मार जाना, है ये क्या था, दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो क्या इसमें जो एरर है, ये एक सेंटेंस है, या तो ये पूरा करेक्ट है तो सेंटेंस में आंसर है नो एरर, या फिर अगर कहीं कोई एरर है तो वही मेरा आंसर होती है। फॉर स्टूडेंट्स हु आर एब्सोल्युटली न्यू फॉर दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, जिनके लिए बिल्कुल नया है, कुछ नहीं है बेटे, आप एक सेंटेंस कंप्लीट पढ़ो, अगर वो सेंटेंस पूर्णतः सही है तो हमारा आंसर होगा नो एरर। ये अ वर्ड लिखा है, उससे मत कंफ्यूज हो, ये वर्ड एक्चुअली है नो एरर। चलो आई विल राइट इट कंप्लीटली सो दैट यू ऑल हैव एन आइडिया, ठीक। अदरवाइज अगर किसी भी जगह मुझे लगता है कि कोई एरर है, यानी कोई मिस्टेक है, कोई गलती है, उस सेक्शन में जाके मान के चलो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ है तो मैं इधर टिक लगाऊंगी, मुझे लगता है इधर है तो यहाँ लगाऊंगी, उधर लगता है तो उधर लगा दूंगी। क्लियर? नो एरर या एरर फाइंडिंग ये होती है, विच इज कॉल्ड एज एरर डिटेक्शन। अच्छा भाई, क्विकली गो थ्रू, ये एक क्वेश्चन है, आंसर लिख लीजिएगा बेटा। ये एंटोनिम केस है, आंसर लिख लो, फटाफट पढ़ लो। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, ऑप्शन में अल्योर, इनएलिगेंस, चार्म एंड आइडियल दिया है मैंने। ये है अकिन के सिनोनिम्स, रिमूव, नैरो, सिमिलर एंड अनपैरेलल, और ये 4 वर्ड्स हैं अकोमोडेट, जिसमें से एक स्पेलिंग करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है। इफ़ यू आर एबल टू डू और इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू, इट डिपेंड्स। सो कमिंग बैक अगेन टू द सेम थिंग, कि बच्चे जब आप प्रिपरेशंस कर रहे होते हो किसी भी पेपर की, किसी भी एग्ज़ाम की, आपको सबसे पहले एक इंट्रोस्पेक्शन करना होता है, यानी खुद में देखिए, खुद में झांकिए अंदर कि पहली चीज़ हम एक्चुअली उस एग्ज़ाम को देने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि नहीं है। यानी कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है, अरे वो मालूम शर्मा जी का बेटा ये कर रहा है, तो अगर आपके पापा ने कहा है कि शर्मा जी का बेटा कर रहा है इसलिए तुम्हें करना है, बिल्कुल मत करो। इट इज़ योर डिसीजन, इट इज़ योर लाइफ। टॉक टू डैड, पापा मैं ये नहीं कर सकता, मुझे ये करना है। First thing, that is what I would advise as a teacher, as a parent. I am also a parent, so I know this. You know, ये जो डाइसी कंडीशन हो जाती है हमारे इंडिया में बच्चों के में और अभिभावक के बीच में, you need to be very clear. ठीक? Try and convince your parents कि पापा this isn't my field. But if you are there, if you want to have those stars and stripes on your shoulder, if you want to wear that cap, remember, if you want to be a part of one of the most elite and the biggest and the strongest, and I suppose there's so many adjectives that actually I can use for my Indian Army, I'm so proud of it. तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट करें, और चूँकि बहुत समय नहीं, 50 दिन का समय ना यूँ निकल जाता है। किसी एनडीए वाले से पूछो, हम लोग स्टार्ट किया था फट से चला गया था, ठीक, कब आ गया एग्ज़ाम सर पे पता भी नहीं चला। तो आपके लिए ये वीडियो देखते रहना या इस तरह के जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं जो आपके लिए काम आएंगे, आप कंटिन्यू करोगे। ठीक, आप एक बुक खरीद लो, उससे पढ़ो, किससे पढ़ो वो आपके ऊपर है, बट पढ़ाई करो। दैट इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट एज अ टीचर। हाँ भाई, तो कुछ सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। तो माई नेम इज़ कामायनी, ये वाला जो सेगमेंट था उसमें कामायनी इज़ अ नाउन, तो ये तो सबने लिख लिया होगा, फटाफट से लिख लिया होगा। इज़ क्या होता है? ये होता है एक हेल्पिंग वर्ब है, और वो भी हेल्पिंग है
प्रेजेंट टेंस को दर्शा रहा है क्योंकि इज लिखा हुआ है। देन आंसर्स अपने क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। द वर्ड नेम इज बेसिकली अगेन अ नाउन, ठीक, जो कि एक कॉमन नाउन है, और माय एक एडजेक्टिव है जो पोजेशन दिखाता है। तो ये एक पोजेसिव एडजेक्टिव केस अटैच्ड विद अ नाउन। कुछ लोग इसे एज अ प्रोनाउन भी यूज करते हैं, लेकिन आपको प्रिसाइज इसलिए होना है बिकॉज आपको आइडेंटिफिकेशन देना है वहाँ, फिर एक कॉमन नाउन, फिर एक हेल्पिंग वर्ब, और फाइनली ये नाउन जो कि एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक व्यक्ति का नाम है। एंड यस, फॉर दैट मैटर, बिकॉज सम पीपल ऑब्वियसली हैव अ क्वेश्चन। बहुत लोग कई बार कमेंट में ही लिखते हैं मैम आपका नाम, तो दिस इज एक्चुअली माय नेम। माय नेम इज कामायनी। आई एम अ फैकल्टी ऑफ इंग्लिश विद द MGS डिफेंस अकेडमी, एंड वी आर वन ऑफ दोज इंस्टीट्यूट्स which is, you know, teaching a whole lot about your armed forces competitive exam. तो armed forces से related जो भी competitive exams होते हैं उसके लिए हम लोग बच्चे को prepare कराते हैं। The course is totally free of cost on YouTube. We are not charging even a penny. तो हम कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं, वीडियो टोटली फ्री रहेगा आप लोगों के लिए, आगे भी फ्री रहेगा। I can assure you for that, I can promise you कि आपसे कहीं कोई चार्जेस या हिडन कॉस्ट नहीं लिया जाएगा। कभी ऐसा नहीं कि आपको ब्लॉक कर दिया जाए और आप वीडियो ना देखें, इतना पे करिए सब्सक्रिप्शन का, नथिंग लाइक दैट। वीडियो फ्री रहेगा, पूरा कोर्स आपको फ्री मिलेगा यूट्यूब पे। नाउ ये क्लियर हुआ, आंसर समझ में आया? और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके आंसर सही हैं कि रॉन्ग है, जैसा भी है। आई वुड रियली लव टू सी कि कितने बच्चे सही से कर पाए और अटेम्प्ट एकदम सही रहा है किसका। देन हाँ भाई, इस वाले पे आ जाते हैं, आंसर्स क्या क्या सही हैं या गलत हैं। तो अकोमोडेट का मतलब जो एग्जैक्ट स्पेलिंग है, जो एक्चुअल स्पेलिंग है वो क्या होगा, ACCOMMODATE, यानी जो पहला वाला था वही करेक्ट था, बाकी सारे रॉन्ग है। अकिन का जो सिनोनिम होगा वो होगा समथिंग सिमिलर टू। सो समथिंग इज अकिन मीन्स समथिंग इज सिमिलर टू। देन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ फॉर योर एंटोनिम। अब अकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत नया था, लेकिन ब्यूटी वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो बहुत कॉमन वर्ड है, हर दूसरे दिन हम सुनते हैं ब्यूटी, ब्यूटीफुल एंड ऑल दैट, बहुत कॉमन जो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। दिस इज़ अ वेरी कॉमन फ्रेज ऑल्सो, अ वेरी कॉमन डायलॉग एक्चुअली। ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर, तो खूबसूरती जो होती है वो तो देखने वालों की आंखों में होती है। तो एक प्रोवर्ब है मेरे ख्याल से, या सेइंग है जो भी, ठीक। सो ब्यूटी आउट हियर, एन एंटोनिम हमें चाहिए, क्योंकि अगर सिनोनिम चाहिए होता तो वो चार्म एंड अल्योरमेंट दोनों से कुछ कनेक्ट होता है, जिसमें चार्म ज़्यादा सही आंसर था। एंटोनिम है तो आंसर है इन एलिगेंस। एलिगेंस इन इटसेल्फ इज कॉल्ड टू बी ब्यूटिफुल, तो ब्यूटी का जो एंटोनिम आएगा वो इन एलिगेंस आएगा। नाउ देयर वुड बी सम पीपल आई नो हु वुड स्टिल हैव दैट क्वेश्चन मार्क, मैम कैसे? कमिंग टू दैट, थमे रहिए, अभी बात करते हैं। क्वेश्चन आपके जो भी हैं, जितने क्वेश्चन मुझे लगता है कि बच्चे के दिमाग में आते हैं ना, आई ट्राई टू रीड द साइकोलॉजी कि बच्चा कहाँ कहाँ फंस सकता है। वी विल कम टू दैट। मैंने कहा ना वीडियो के एंड तक आते आते आई विल गिव यू द आंसर्स। देन नो एरर केस था, एरर डिटेक्शन सॉरी। तो हमारा आंसर क्या आएगा? आयरन इज द मोस्ट यूजफुल अमंग ऑल मेटल्स। ये रहा एरर, दैट मीन्स हमारा एरर था यहाँ पे हम लोग मार्क कर लेते हैं विच इज सी, कि यहाँ अगेंस्ट की जगह अमंग होना चाहिए, बाकी सेंटेंस में कहीं कोई एरर नहीं था। पीपल हु स्टिल हैव डाउट्स ऑन सर्टन क्वेश्चंस, या कोई क्वेरी है आपकी, अगेन रिपीटिंग इट, कमेंट सेक्शन में जाइए, लेट मी नो। We will come back, we will rectify the mistakes, we'll come back with an answer, we'll come back with added things. So this is what happens, you know, in your NDA examination. And then since idioms and phrases, पूरा लिखना थोड़ा वो हो जाता है, idioms and phrases का आपके सामने आपको एक PDF दिख रहा होगा। ये idiom and phrase अगर आप चेक करेंगे 2019 के एग्ज़ाम से पूरा का पूरा लिया गया है, ठीक है। नाउ क्विकली एटलीस्ट 2 ट्राई करो, 2 से 3, ठीक। 3 यू ऑल कैन सी, आई एम श्योर एकदम क्लियर दिख रहा होगा कि क्या आप ये वाले idioms एंड phrases कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं।
रिमेंबर द प्रॉब्लम इज़ कि कई बार बच्चा सोचता है हम कुछ कुछ सेगमेंट कर लेंगे। बेटा अगर कुछ कुछ सेगमेंट करेंगे और बाकी छोड़ देंगे तो फिर वहाँ कैसे काम चलेगा। प्लस अगर जय माता दी रॉक्स लगाओ, फ्लिप द कॉइन। फ्लिप द कॉइन क्या होता है? टॉस अ कॉइन, हेड्स आए तो ए, टेल्स आए तो बी, लेकिन यहाँ तो ABCD 4 दिए हैं, तो क्या करेंगे हम लोग। सो उस तरह से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं हो सकती, रैंडम नहीं हो सकता है। हमने कहा ना, अगर आप वाकई फोकस्ड हैं, यू नीड टू प्रिपेयर फॉर इट। चलो भाई, तो डर्ट चीप अगेन लिखिए, हाँ, जो भी पेन पेपर लेके बैठो उस पर लिखो कि क्या आंसर हो सकता है। पूरा ना भी लिखो, ABCD की क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10, बस इतना। तो डर्ट चीप एक्चुअली होता है और फिर आप चेक कर सकते हो। एक्सट्रीमली चीप, अ शिंकिंग वायलेट। वायलेट इज़ अ काइंड ऑफ अ फ्लावर। वो एक ऐसे पर्सन को कहते हैं जो बहुत शाय होता है, एक्सट्रीमली शाय। एंड गॉर्डियन नॉट एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इट्स अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। रिमेंबर वो डिफरेंट लिखा है, डिफरेंट नहीं, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। तो ये भी अगर आपका करेक्ट है तो माय डियर बॉय, यू हैव अराइव्ड। ठीक, यू हैव रियली प्रिपेयर्ड। आप रेगुलर प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है, एंड आप एग्ज़ाम आराम से, इट विल बी एज ईजी एज वॉकिंग इन योर गार्डन। आप आराम से निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें अटके हैं, अगर आप इसमें कहीं अटके हैं, कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम आई है, आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक, अभी मैं मानती हूँ कुछ चीज़ें अभी शायद समझ में नहीं आ रही होंगी, इसमें प्रॉब्लम आई थी सिर्फ इतना करने में कि आप ये नहीं समझ पा रहे क्या नाउन, क्या प्रोनाउन, क्या चीज़ कैसे, और इनको हम कैसे यूज़ करेंगे। ठीक, तो बच्चे ये वीडियोस या आगे आने वाले बहुत से ऐसे वीडियोस आपके लिए हैं। CDS एग्ज़ाम इज़ नॉट सच एन ईजी। और वो बच्चा भी जो NDA दे के बैठा है कि मैम आप ही ने पढ़ाया था, कई बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ाया था, कई होंगे जो अब प्रिपेयर करेंगे, तो बेटा अब थोड़ा सा लेवल ना हायर चलेगा। एकदम सिंपल पेपर नहीं आएगा, 12th लेवल का नहीं आएगा। सो एवरीबडी आउट देयर हु वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस सर्विसेज, मेरे ख्याल से तो द मोस्ट प्रेस्टिजियस सर्विसेज in India is the armed forces. A big salute to those people because of whom we are safe and alive. तो अगर आप उसका हिस्सा होना चाहते हैं, अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं, वो चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, अगर आप इतने मोटिवेटेड हैं कि आपको लगता है यार हम अगर होते चाइना वाले बॉर्डर पे तो हम कुछ कर लेते, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये प्रिपरेशन MGS डिफेंस एकेडमी द्वारा आपके लिए है। आगे वीडियोस मिलते रहेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आपका जो सपोर्ट हम लोगों को प्रीवियसली मिला था आगे भी मिलेगा। जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे, सब्सक्रिप्शन बटन दबाना मत भूलना, साथ में बेल आइकन दबा देना, बिकॉज मेन थिंग ये है कि जब बेल आइकन आप दबाते हो तो आपको डिटेल्स नोटिफिकेशन मिल जाती हैं। पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। आंसर करेक्ट था या रॉन्ग? सारा करेक्ट था, सारा रॉन्ग था, मिक्स बैग था, मैम कुछ चीज़ें तो ऊपर से चली गई, कुछ नहीं भी समझ में आया, लेट मी नो। इफ़ देयर वॉज अ मिस्टेक इन समथिंग, लेट मी नो। आई वुड लव टू टॉक टू यू, आई वुड लव टू इंटरेक्ट विद यू, सो दैट जो एक बॉन्ड होता है एक टीचर का और एक टॉट का, तो ऑनलाइन में तो आजकल यही है, इसी से बनता है, ऑफलाइन तो हो नहीं रहा है। We will be there, we will stay, we'll start our journey from here onwards. So, to a nice beautiful beginning which will go till we reach our destination, till the day that you give your exam, you sit for the paper. So, with that fresh start, see you all in the next video. Thank you for watching.